Good morning, dear student. Please pay attention. We are going to start chapter 3. We have completed chapter 2, atomic structure. Now we are going to start chapter 3, that is classification of elements. Clear? In this lecture, we will discuss how to write name of the elements with atomic number more than 100. Systematic name. Clear? Once again I repeat, in this topic, in this chapter, in this lecture, we will discuss how to write the systematic name of the elements with atomic number more than 100. Clear? Before proceeding further, let me tell you one important thing, that nowadays in periodic table, whatever elements are there, these elements were named by IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. This organization has right to give the name of an element. Clear? Now see, till now 114 elements are known. Out of these 114, some elements were known from the very beginning. Clear? But some were discovered recently. Some are discovered recently by a team of scientists whose head of this team was Galen Seaborg. Galen Seaborg was the head of this team of the scientists who worked on the discovery of the elements. Clear? So now look at the book. See, chapter 3, classification of element. IUPAC nomenclature of एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100. ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, उनका नाम कैसे लिखेंगे? सिस्टेमेटिक नेम, नॉट IUPAC नेम. दीज आर कॉल्ड सिस्टेमेटिक नेम. व्हाई दीज आर कॉल्ड सिस्टेमेटिक नेम एंड व्हाई दीज आर नेसेसरी? सी, reason is that these element whose atomic number is more than 100, they are also called super heavy element. Please remember, super heavy elements. So all the elements with atomic number 101 to 140 have been identified. ये सभी एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है, इनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है. ठीक है, इनके प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी है. बट some of these are known since long. इनमें से कुछ की जानकारी काफी पहले से है. While others have been discovered only recently by a team of scientists headed by Galen Seaborg. Galen Seaborg was the head of the team of the scientists who were working on nomenclature of the elements. ठीक है, तो all the elements with atomic number 101 to 140 have been identified. एटॉमिक नंबर 1 से 114 तक, 101 से 114 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं. सभी के बारे में जानकारी है, उनके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी है. ठीक है, इनमें से कुछ जो है काफ़ी पहले से इनके बारे में जानकारी है. सम ऑफ दीज आर नोन सिंस लॉन्ग. इनकी जानकारी काफ़ी पहले से थी. व्हाइल अदर्स have been discovered only recently by a team of scientists headed by Galen Seaborg, and at where this research, where this works is going on, it is at Lawrence Berkeley Laboratory. Once again I repeat, Lawrence Berkeley Laboratory, which is in Berkeley City in California. This is the place, this is the laboratory where these works are going on. Clear? Now see, although name and symbol to many of these have elements have been assigned. इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम
दिया जा चुका है। क्लियर? बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम दिया जा चुका है ऑलरेडी, बट दीज नेम्स आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मतलब ये नेम आईयूपीएसी के द्वारा नहीं दिया गया है। आईयूपीएसी के द्वारा दिया गया हर नेम, हर रूल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीन्स पूरे यूनिवर्स में जहाँ जहाँ केमिस्ट्री की पढ़ाई होगी, ठीक है, वो सारे रूल्स को फॉलो करना है जो आईयूपीएसी दिया हो। क्लियर? लेट अस टेक एन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर। सपोज यू आर बाइंग 1 मीटर क्लोथ। आप 1 मीटर कपड़ा खरीदते हो, ठीक है, उसको डिफरेंट प्लेसेस से आप खरीदो। एक को दिल्ली से लिया हो, एक को आपने यूएसए से खरीदा हो, एक को रसिया से खरीदा हो, एक को चाइना से खरीदा हो, एक को अमेरिका से खरीदा हो, ठीक है। क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ में भी डिफरेंट, क्वालिटी अलग हो सकता, बट इफ यू मेजर द लेंथ ऑफ दैट क्लॉथ विच यू हैव बाइड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, विच यू हैव परचेस्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अगर उस कपड़े की लंबाई को नापा जाए जो आपने अलग अलग जगह से खरीदा है, तो सारे के सारे लंबाई क्या होंगे? सेम होंगे। व्हाई? दिस इज बिकॉज the scale, measuring scale which they are used to cut the cloth, to measure the cloth is universally accepted। वो स्केल जिससे उस कपड़े को नापा जाता है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्केल है। पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में वही स्केल चलता है। तो यही कारण है कि कपड़े की लंबाई में कोई भी डिफरेंस नहीं होगी, बिकॉज द स्केल इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बट the name of the elements more than 100 means 101 to 114 elements name have been given, it has been given, but these names are not universally accepted, still some controversy is there। क्या है वो देखिए, although name and symbol to many of these elements have been assigned। हालांकि इनमें से बहुत सारे नेम एलिमेंट्स का नेम और सिंबल दिया जा चुका है, बट दीज आर स्टिल नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लेकिन ये नाम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है बिकॉज दीज आर नॉट गिवन बाय आईयूपीएसी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अमेरिकन एंड सोवियत, दीज टू कंट्री दे बोथ क्लेम फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेम एलिमेंट। इन दोनों कंट्री का कहना है कि इस एलिमेंट का डिस्कवरी हमारे यहाँ हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सी अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम्ड क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 104। तो एटॉमिक नंबर 104 104 वाला जो एलिमेंट है, इसके डिस्कवरी में अभी भी कंट्रोवर्सी बना हुआ, क्योंकि इसके लिए क्लेम दो कंट्री करता है, एक अमेरिका और एक सोवियत। ठीक है, द अमेरिकन साइंटिस्ट जो है, द अमेरिकन नेम्ड इट रदरफोर्डियम 104, जिसका एटॉमिक नंबर है 104 वाले एलिमेंट को अमेरिकन रदरफोर्डियम नाम दिए। उनके द्वारा दिया गया नाम है रदरफोर्डियम एंड सिंबल इज RF। वेयर सोवियत नेम्ड, सोवियत जो है ये कंट्री भी दावा करता है कि मेरे यहाँ डिस्कवर हुआ। तो सोवियत इसी एलिमेंट्स को कर्चेटोवियम Ku सिंबल इस नाम से जाना जाता है। मीन्स द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 101, name of this element is given, but this name is not universally accepted because two country claimed for the credit of the discovery of this element। ये दोनों कंट्री, अमेरिकन एंड सोवियत, दोनों का ये दावा है कि हमारे यहाँ डिस्कवर हुआ। ठीक है, दोनों ने अपना अपना नाम दिया, बट दीज नेम्स आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। नेक्स्ट इज अनदर वन मोर एग्जांपल, सी सिमिलरली एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107। वो एलिमेंट जिसका 107 है एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट को नील्स बोरियम के नाम से जाना जाता है। बट दिस नील बोरियम, ये नाम भी आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम नहीं है। क्लियर?